Okay, good morning students. Today 31st of October 2020 and this is the end of the day, month. So let us revise the chapter. This is Geordie's Pond, chapter number 6. Today we will talk about the summary or gist of the story. Geordie Baxter is a teenager boy living with his parents. Geordie's father, Mr. Baxter, was beaten by a rattlesnake. मिस्टर बैक्स्टर को रैटलस्नेक ने काट लिया था। ये एक बहुत पॉइजनस स्नेक होता है जिसके काटने से इंसान बच नहीं पाता है। So for that he killed a dog. Okay, female deer को बोलते हैं dog. So he killed a dog to use its liver and heart to draw the poison out. तो उन्होंने एक डॉग को मारा और उसका लीवर और हार्ट को निकाला जिससे कि उस जहर को निकाला जा सके। Slowly, gradually, he recovered. Mr. Baxter recovered, but his son Geordie, who was with his father during the incident, felt guilty about orphaning a young fawn. Geordie जो था उसे बहुत गिल्टी फील हुआ क्योंकि वो उस समय इंसिडेंट के समय वहां प्रेजेंस था और उसे ये लगा कि हमने डो को मार दिया है और डो की बेबी फॉन का उसका क्या होगा, वो अनाथ हो गया। He convinces his father to allow him to find the fawn and adopt it. उसने अपने फादर को ये कन्विंस किया कि हम उस फॉन को लेके आए और उसको फीड करें, उसे पाले पोसे बड़ा करें। His father reluctantly allows him of his gratitude for the dog for saving his life. उसके फादर ने भी इस चीज को रियलाइज की कि हमने उसके मदर को मार के अपने पर्पस के लिए यूज किया था, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम बेबी डियर को बचा करें। Geordie tells his mother that he is going to look for the fawn and bring it to their home. Doc Wilson and Millville support the idea of adopting the fawn. Right? Both these guys, they supported Geordie to adopt. They like the idea of Geordie. His mother is not pleased with the decision, but she doesn't stop him. Geordie rides into the woods with Millville. Geordie Millville के साथ घोड़े पे सवार होके गया था। Geordie rides into the woods with Millville. He gets off not wanting company when he finds the fawn and sends Millville away. So Geordie, what did he want? He doesn't want that Millville will continue to ride. He wants that when he wants to face that particular fawn, he must be alone. The meeting will be secret, which gives a secret joy, secret happiness to Geordie. If the fawn was lost or forgotten, whatever, anything mishappened with that fawn, that situation also Geordie don't want to share with any other person. The disappointment scene, the sad scene, the nervous scene, everything. उसने दोनों कंडीशन रखी कि अगर फोन उसे नहीं मिलता है, कहीं भूल जाता है, तो वो डिसअपॉइंट वाला चेहरा, नर्वस वाला चेहरा वो मिलविल के सामने नहीं दिखा सकता था। सेकेंड थिंग, अगर फोन उसे मिलता है, वो बेबी डियर उसे मिल जाती है, तो जो एक्साइटमेंट, जो जॉय मीटिंग की थी, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। So he gets off not wanting company when he want to meet that form. When he start looking for the form, he discover the carcass of the killed dog being eaten by buzzards.
his bird. तो जब वो ढूंढ रहा था तो उसने क्या देखा, कैरकेस मींस डेड बॉडी ऑफ डो, फीमेल डियर जिसे मारा था उसकी डेड बॉडी देखी, और वहां पे देखा बजर्ड बर्ड्स, बड़े होते हैं, बड़े बर्ड्स होते हैं, वो खा रहे थे उसका फ्लैश, मीट खा रहे थे. He also found footprints of big cats for a moment there. उसने बड़े-बड़े cats के लिए, we can say that tiger भी हो सकता है. उसने देखा कि उसके पैरों के निशान भी थे. He feared for the life of the fawn. डर लगा कि क्या हुआ होगा fawn के साथ, बेबी डियर के साथ क्या हुआ. Right. So he also found footprints of that cats. After an intense search, he finally found the fawn behind a bush. काफी ढूंढने के बाद उसे वो fawn मिला किसी झाड़ियों के पीछे. Jody noticed that the fawn was shivering. Okay, कांप रहा था, डर के मारे कांप रहा, and was distrustful. उसे किस पे विश्वास हो गया, डर बैठ गया था उसके में, ऐसा लग रहा था. But the fawn was alone, कोई नहीं था, and afraid also, डर भी था और अकेला भी था. Jody carefully approaches him and comforts him. Jody ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत लवली वे उसके साथ ट्रीट किया कि उसे ऐसा फील ना हो कि जॉडी से उसे कुछ हार्म हो सकता है, डरे नहीं वो जॉडी को देख के. The fawn slowly becomes more close and dependent. fawn धीरे-धीरे उसके पास आ, ठीक है, उसे थोड़ा जो डर था वो खत्म किया और धीरे-धीरे ग्रेजुअली उसके पास आता है. And he depended on Jody, trusting him slightly and completely after that. और उससे उस पर जॉडी पे उसे थोड़ा विश्वास मिलेगा, उसके बाद धीरे-धीरे उसे पूरा फेथ होने. But when he starts walking, the fawn does not. जब चलने की बारी आई, fawn चलना ही नहीं चाहा. So Jody has to carry the fawn through the woods. उसने अपने गोद में उसको उठाया. He went around the area and where his father was beaten, और उस एरिया में गए जहां पे उसके फादर को स्नेक ने काटा था. And where lay the carcass of the fawn's mother, और वहां पे उसकी मदर की डेड बॉडी पड़ी थी. और उसे लगा कि अगर उसकी डेड बॉडी को सुन के बेबी डियर ने कुछ रिएक्ट किया, व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा. अगर वो उससे डर के मारे फिर भाग गया होता है कि जॉडी को, तो फिर तो वो फोन चले जाएगा, उसके हाथ से छूट जाएगा. So he had to stop often for breaks as he himself been little. तो उसने कहा कि मुझे अवॉइड करके, इस सीन को अवॉइड करके इस फोन को यहाँ से जल्द निकालना ताकि वो नहीं देखे. And he was severely struggling with the weight of the phone, और फोन को उठा के ले गया. But the weight of the phone was there, उससे वजन तो था, जॉडी को इतना बड़ा बच्चा तो था नहीं, was also a small boy. So he just put Jodie's arms become painful, उसके दर्द होने लगा. उस थोड़ी देर जॉडी को नीचे, फोन को नीचे रखा, फिर थोड़ी देर चला, जैसे चलता वो उसको फॉलो करता. ये एनिमल्स में एक टैक्टफुल होता है कि अगर हम उसको एक बार बहुत लविंगली ट्रीट करते हैं तो वो एनिमल हमें नेक्स्ट डे वापस फॉलो करता है, ये होप से कि इट विल गेट समथिंग फ्रॉम अस, उसे हमें कुछ, उससे हमें कुछ मिलेगा या हमसे उससे कुछ उम्मीद है. तो इस तरह एनिमल का ये नेचर रहता है. तो फोन बेबी डियर ने भी ऐसे किया कि देर तक फोन जॉडी ने उसको गोद में रखा, जैसे नीचे रखा तो उसको धीरे धीरे फॉलो करने लगा. So he carried the fawn on his journey. He even managed to wind the fawn trust, gradually giving willing to follow him. उसने उसको अपने ट्रस्ट में ले लिया धीरे धीरे. After a point, Jody felt such a deep affection for the fawn that the struggle and the pain did not matter. इतना affectionate हो गया जॉडी का बेबी डियर के प्रति कि जो दर्द भी हो रहा होगा उसकी बॉडी में वो फील नहीं कर रहा था, उसको गोद में उठाते हुए आराम से चल रहा था. And finally they reached their destination, home. अपने घर पे वो पहुंचा जॉडी. And the fawn refused to go upstairs. मगर fawn नहीं आगे नहीं बढ़ा, नहीं जाना चाहता.
as it was too small and perhaps did not know how to climb up the stair. उसे मालूम नहीं था कि स्टेयर सीढ़ी कैसे चढ़ना है, तो वही रुक गया, आगे बढ़ाएगा. But Jody carried him to his father, who expressed joy at seeing the phone. Jody ने उसके फादर को पकड़ा और जॉडी और उस फोन को देख के मिस्टर बैक्स्टर बहुत खुश हुए. Later, Jody lovingly fed the fawn in the kitchen. और उसके बाद किचन में ले गया. उसने देखा कि बेबी डियर को मुश्किल हो रही है मिल्क सक करने की. So Jody himself put his finger and dipped into the milk and let the fawn suck his finger. उसके टंग पे चटाता और उसे चाटता. इस तरह से उसने उसको फीड करना सीखा बेबी डियर. So it is not an easy task for a small boy to feed a baby deer. ये आसान काम नहीं है कि बेबी डियर को किस तरह से फीड किया जाए. उसे टेक्निक, छोटे से बच्चे को टेक्निक थोड़ी ना आता है, लेकिन जॉर्डन ने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई टू रेज दैट बेबी डियर. ओके, so this is the short summary about it. Let us give you a theme of the story. क्या theme है story? The story, as you know, that the theme is living with kindness and compassion. इस story की morality है living with kindness and compassion. As it is a story of a young boy who rescued a baby deer. एक young boy की कहानी है जिसने एक baby deer को बचाया. Although the killing of the doe may look like an animal cruelty to save a human, जबकि हमें मालूम है कि किसी जानवर को मारना हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए एक गलत काम है, ये हमारी क्रूरल्टी नजर आती है. फिर भी उस यंग बॉय ने इस सीन को समझकर उसने उस बेबी डियर को रेज करने का या फीड करने के बारे में सोचा. So the decision of Jordan to bring the fawn open him, it shows the kindness towards the animals, the compassion towards the animals. It shows the Jordy's character. ये जॉडी के कैरेक्टर को शो करा जाता है कि किस तरह से जॉडी एनिमल के प्रति कितना काइंड था, कितना कंपैशन. So, moreover, Jody wanted a pet and a companion and rescued the orphan baby deer. Instead of getting a cat, कोई कैट को ला सकता, कोई डॉग को ला सकता था, उसे फीड कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसे एनिमल को चूज किया जिसकी मदर का उन्होंने अपने पर्पस लिए यूज किया. इसलिए उसका ये राइट, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने बेबी डियर को बचाना था. Okay. So here we can say that this is a lesson in always trying to be kind. ये हमें एक शिक्षा देती है कि हमें kind, दयालु की भावना रखना चाहिए, दया की भावना रखना चाहिए. And compassionate, हमारी जो responsibility है उससे हमें दूर नहीं होना चाहिए. Because ultimately it is the giver who gets the higher hand. जितना आप देंगे उतना आप पाएंगे. हम जितना देते हैं किसी को कुछ, उससे ज्यादा हमें मिलता है. तो ये मत सोचिए कि आपको कितना मिल रहा है कितना नहीं तो हमें नहीं देना. ये सोचिए कि आपने जो भी चीज किसी को दिया है वो बहुत ज्यादा और उसका रिटर्न आपको जरूर मिलता है किसी ना किसी वे. जॉडी ने भी ऐसा ही किया. जॉडी ने भी भले ही उस डो का यूज अपने फादर की लाइफ को बचाने के लिए किया था, बट उसने बेबी डियर को भी खाली नहीं छोड़ा. उसने उसको अपने घर लेके आया और उसे फीड किया. इससे उसकी एनिमल के प्रति जो दयालुता की भावना उससे प्रूफ होता है. ह्यूमैनिटी, इंसानियत जी की भावना जो थी बरकरार रखी उसने एक एनिमल के प्रति. So this is the theme of the story. So whatever we have discussed, I think it must clear to you, isn't it? So this is the short summary of this